Hello friends. So this is the second lecture which is in the series of MECR, that is the multilateral export control regimes. So in the last lecture I have described about the Wassenaar arrangement. Now in this lecture I am describing the Australia group. So I have already explained you about the multilateral export control regimes. So these are non-formal regimes, or you can say outside the purview of United Nations. So it is just a non-formal arrangement of different countries in which the countries who are members of the group or association, they emphasize to put export control, to put control on the exports of dual use items, or those type of goods and technology like conventional weapons, like those type of technology and goods which can be which can hamper the security and stability of the region, of the country and the world at large. So Wassenaar I have already described you that it put control on the exports of conventional weapons and dual use technologies, and India was a member of Wassenaar. Now I will be describing you about the Australia group. So this is just a small chart. You can have a look on this chart. So this chart basically gives you crux of the export control regime examples. So there are some treaties which are legally binding, and these regimes which are non-formal associations. So Vasena, I have already explained you that it put control or restraint over exports of conventional weapons and dual use goods and technologies. Now weapons of mass destruction like missiles, you already know about missiles, nuclear weapons, and chemical and biological weapons. So missiles I'll be explaining about MTCR in my next lecture, but in this lecture I'll be describing about Australia group. So Australia group put restraint on exports of the weapons which are chemical and biological weapons. So these type of weapons, so export, so there should be a restraint over export of these weapons. So Australia group and Wassenaar missile technology control regime for missiles. Okay, NSG for nuclear weapons. Now these are MECR which I have talked right now. Now treaties which are legally binding, NPT, I have already explained that NPT is for nuclear weapons and chemical weapons and biological weapons. So there is a treaty which is binding who are members of these treaties, that is convention on biological weapons and convention on chemical weapons. So CWC and BWC. So these are treaties in the same weapons of mass destruction. So these are the weapons of mass destruction. Conventional weapons, I have already explained you: helicopters, military helicopters, battle tanks, warships. So these are conventional weapons. But those weapons which can cause mass destruction, these are missiles, nuclear weapons, and chemical and biological weapons. So in this purview we will be studying about the Australia group. So this chart you should understand. So Australia group, it established in 1985 to help member countries to identify those exports which need to be controlled as not to contribute to the spread of chemical and biological weapons. तो ऐसे एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना है ताकि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को मैन्युफैक्चर ना हो पाए, या फिर अगर आपके पास ऐसे वेपन्स हैं तो आपको एक्सपोर्ट जब ये करेंगे तो आप बहुत रिस्ट्रेंट रखेंगे और बहुत जिम्मेवारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ एक्सपोर्ट करेंगे. और जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप बाकी मेंबर कंट्रीज़ को इंटीमेट करेंगे, यानी कि इन्फॉर्म करेंगे. इसमें 43 कंट्रीज़ हैं: यूरोपियन कमीशन, US, EU स्टेट्स, मेंबर स्टेट. चाइना इसका भी नहीं है, वासेनार का भी नहीं है, और अब जो है MTCR उसका भी चाइना मेंबर नहीं है. इंडिया इन तीनों का मेंबर है, बट चाइना न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, क्योंकि चाइना जनरली NSG में ब्लॉक कर देता है इंडिया की कैंडिडेट्स. तो इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया था और इसका सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलिया मैनेज करता है. सिंस दिस इज नॉट अ ट्रीटी, therefore not legally binding, its regulations however applies only to its members. This arrangement is independent of UN.
इट वर्क्स बेस्ड ऑन कंसेंसस से ये निर्णय लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टुडे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंटेन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन ए यूनिफॉर्म लिस्ट ऑफ 54 कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सेवरल। सो इस ग्रुप में 64 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एक्सपोर्ट कंट्रोल बोला गया है कि एक्सपोर्ट पे कंट्रोल रखोगे, क्योंकि वो 54 कंपाउंड्स को यूज़ करके केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। सो इनमें से कुछ कंपाउंड्स केमिकल वेपन कन्वेंशन में भी बैन है जिन पे, लेकिन ये ज़्यादा एग्जॉस्टिव है केमिकल वेपन कन्वेंशन से। इसके अंदर 54 कंपाउंड्स हैं विच कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वेपन्स लाइक मस्टर्ड गैस, फॉस्फाइन गैस, सरीन गैस, इस टाइप की जो ये केमिकल वेपन्स है। द एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आर कंसिडर्ड फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मैंने बोला, एंड गो बियॉन्ड इवन द स्कोप ऑफ CWC एंड BWC। इनसे भी ज़्यादा इसके अंदर कंपाउंड्स हैं, पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एज कम्पेयर टू, बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, जबकि CWC BWC इज लीगली बाइंडिंग। बायोलॉजिकल वेपन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई विद द इंटेंट टू किल और इनकैपेसिटेट ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इस टाइप के वेपन्स जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से बनते हैं, इस टाइप के जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बनते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए प्लेग छोड़ दिया किसी के ऊपर आपने, कंट्री के ऊपर, तो प्लेग से हज़ारों लाखों लोग मर गए। तो जैसे कोरोना आजकल आया हुआ है, तो कोरोना इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से, इज अ बायोलॉजिकल वेपन। All states participating in the Australia group are state parties to CWC and BWC. So those states who are member of this group, Australia group, they are members of CWC Convention on Chemical Weapons and Convention on Biological Weapons also. So they are state parties to these treaties also. And those items under regulation and license in India which require license for export आर डुअल यूज़ आइटम्स एंड गिवन द एक्रोनिम स्कोमेट। तो इंडिया में इन ऐसे प्रोडक्ट्स को स्कोमेट कहते हैं, दैट इज स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो जिनके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट कंट्रोल बैन लगाया, एक्सपोर्ट कंट्रोल पे बैन नहीं लगाया, एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगाया, रिस्ट्रेंट रखता है इंडिया। और इंडिया ने ये सारे जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली क्या है, डिक्लेयर किए हैं स्कोमेट में, जो ऐसे केमिकल्स कंपाउंड्स हैं जो कि इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, एंड इंडिया इन कंपाउंड्स को बहुत रिस्ट्रेंट करके एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर किए हैं कि इंडिया के पास ये कंपाउंड्स अवेलेबल हैं और इंडिया इनका एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ को करता है और इतनी मात्रा में करता है। तो पूरी तरह इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर किया है। क्यों डिक्लेयर किया है? बिकॉज इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपाउंड्स एक्सपोर्ट करता है, कौन कौन से कंपाउंड्स एक्सपोर्ट करने के बाद वो किस कंट्री को करता है और कितनी मात्रा में करता है, वो सारा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट इंडिया इज गेटिंग आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है तो ऑब्वियसली इट कैन ओपन डोर टू इंडिया टू बिकम मेंबर ऑफ NSG। ठीक है, NSG का मेंबर बनना ईजी है इंडिया के लिए, कम, लेकिन इतना ईजी नहीं क्योंकि चाइना वीटो कर देता है हमेशा। रीअफर्मेशन ऑफ इंडियाज क्रेडिबिलिटी, affirmation of India's position as a responsible nation in the arena of dual use goods and technology। ठीक है ना, अगर इंडिया इसका मेंबर है इसका मतलब इंडिया को रिस्पॉन्सिबल नेशन माना जाता है, तो क्रेडिबिलिटी इंडिया की रीअफर्म होती है। स्ट्रेटेजिक विन ओवर चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि चाइना एंड पाकिस्तान नॉट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, thus becoming a member of this group gives strategic win of India over its counterparts or over its competitors. Joining the Australia group would also help in strengthening supply chain security in the dynamic industry fields of biotechnology and chemicals। तो साथ में क्योंकि इंडिया मेंबर होगा तो अगर इंडिया को ऐसे कोई कंपाउंड जिनकी ज़रूरत है इंडिया को अपने बायोटेक्नोलॉजी या केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, जो कि हो सकता है इस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के उसमें 54 कंपाउंड्स में वो कंपाउंड हो सकता है, बट इंडिया को अगर ज़रूरत है तो बिकॉज इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप तो इंडिया को ईजिली मिल सकता है वो, अलॉन्ग विद मीटिंग नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव। तो फ़ायदा क्या है इंडिया को कि एक तो इंडिया को फ़ायदा ये है कि इंडिया को कोई भी अगर मान लीजिए कंपाउंड चाहिए क्योंकि इंडिया को अपने बायोटेक्नोलॉजी या केमिकल सेक्टर में यूज़ करना है तो इंडिया को ईजिली वो अवेलेबल हो सकता है, बिकॉज इंडिया का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत क्लीन है और क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। और इंडिया क्योंकि इसका मेंबर है तो ऑब्वियसली इंडिया ने हर चीज़ ओपनली डिक्लेयर किया है, ट्रांसपेरेंसी
इंडिया ने रखी है। तो इंडिया अगर इसको लेगा भी तो इंडिया पूरी तरह डिक्लेयर करेगा, तो उसका उस कंपाउंड का इंडिया क्या यूज़ करेगा और वो उसको डिक्लेयर करेगा और दिखाएगा। परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो बेसिकली इन ग्रुप्स का मोटा मोटा आप समझ लीजिए पॉजिटिव साइड क्या है मेंबर्स होने का, कि इंडिया एक्सपोर्ट करना इंडिया के लिए ईजी है और इम्पोर्ट करना भी ईजी है। कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है, किसी देश को कुछ बेचना चाहता है तो आसान है भाई ऑब्वियसली, क्योंकि कोई शक नहीं करेगा ना इंडिया पे, क्योंकि इंडिया सब डिक्लेयर करके करेगा। और इम्पोर्ट करना भी ईजी है क्योंकि कोई भी कंट्री ईजिली इंडिया को देगा। परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी बनने के लिए ईजी रहेगा। और साथ में इंडिया कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन आफ्टर बिकमिंग मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप। तो इन ग्रुप्स का मेंबर बनने के बाद इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नॉन प्रोलिफरेशन में बहुत हाईली कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे कर सकता है? सिंपल है, क्योंकि इंडिया अगर इन ग्रुप का मेंबर है तो इंडिया मतलब नॉन प्रोलिफरेशन, और क्योंकि ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये बेसिकली क्या है, दे आर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन, टू एडवांस इन नॉन प्रोलिफरेशन। ऑब्जेक्टिव इनका यही है, नॉन प्रोलिफरेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। तो इंडिया अगर इन ग्रुप्स का पार्ट है तो डेफिनेटली इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे MTCR, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम।